Set of Yes. fruits. Yes. Set of fruits. Set of two. Okay. Anything else about grammar? Okay. As we are starting today our intermediate level grammar, would like to tell you first of all about my journey of IELTS. You know, when I started IELTS and it was my first round when I went for the mock. And at that time in Germany, when I was in Germany, at the time we had there my tutor and I went for the mock and she asked me one question. She asked me, what's the meaning of A? What's the meaning of A? One. I smiled at her and I said, अरे यार मैडम ने कितना ढिल्ला क्वेश्चन पूछा है मुझे. I smiled at her and I said A means one. What did I say? A means One. one. She asked me more. What do you mean by A? What else? और क्या मतलब है A का? मैं बोला, अरे यार A का मतलब तो एक होता है इंग्लिश में. और क्या मतलब हो सकता है? I thought again and I said nothing. A means one. She said, you may go now. No problem. I asked her, am I right? She said, no. You have given perfectly only 5% answer. I said, 5% answer? She said, yes. A has different meanings in English. There are more than 5 to 10 meanings we have in English for A. Single A के English में इतने सारे meanings हैं. I said, oh my God, really? Later on, I came to know all these things. But the moment when she asked me, tell me the meaning of A, and I was smiling at her. मैं बोला, रे क्या bundle question पूछा है मुझे? It was not bundle. Actually, she has given me a tight slap of grammar. She has asked me only one simple question, what do you mean by A? And I can give you the guarantee, even in India, whatever we are speaking here, even teachers don't know the meaning of A completely. Sorry to say this. So now, my dear friends, we are going to see today the meanings of A in English. How many meanings do we have? How to use them, when to use them, and when not to use them. We are going to have each and everything in different perspectives and different ways. We are going to see when to use A and what do we mean by this one. But remember, the first meaning of A is one. It is mandatory. The first meaning of A is one only. But we have some other meanings also. ए के अलग अलग मीनिंग है. क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आज हम लोग ग्रामर के अंदर आज अपना पहला रॉकेट जाने वाला है. सो दिस इज व्हाट रॉकेट से याद आया मुझे. अभी रॉकेट से याद आया, मैं आप लोग को आपका इंग्लिश दिखा देता हूँ एक बार. क्या आपको इंग्लिश का एक रॉकेट है जो मैंने बनाया हूँ, अंसार बाबा ने बनाया है. वो रॉकेट आपको लेके जाना है आपको स्काई के अंदर, आसमान में. दिस इज द रॉकेट. हाउ इज दिस रॉकेट? नाउ इफ यू सी, दिस इज द रॉकेट ऑफ योर इंग्लिश. ये आपके इंग्लिश का रॉकेट है. इंग्लिश का रॉकेट क्यों है? बिकॉज दिस रॉकेट कंटेन्स नाउन. इसका फर्स्ट पायलट है, मेन पायलट. को पायलट इज प्रोनाउन. दूसरा इसका पायलट है प्रोनाउन. अगर ये सोया तो ये वाला काम करता है. देयर आर टू इंजन्स वी हैव, वर्ब एंड एडजेक्टिव. वर्ब एंड एडजेक्टिव. एंड द थर्ड मेन इंजन इज व्हाट? एडवर्ब, जो कि दोनों एडजेक्टिव्स को सपोर्ट करता है. ये अपना मेन प्लेन का मेन पार्ट है. दो इंजन को सपोर्ट करता है, वो है एडवर्ब. एंड वहां पे तीन टायर है. दैट्स व्हाट? प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस, ये तीन उसके मेन टायर है. सो ये अपना प्लेन है इंग्लिश का, जिसको आपको उड़ाना है. So for that, we are going to see the first thing today, and that's what? A. English के अंदर सबसे basic चीज आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, और वो क्या है? A. What is A exactly, and how many meanings do we have for A? What do we mean by A? How to use A? When to use A? When not to use A? Each and everything we are going to see today. All right? आज हम लोग देखेंगे कुछ तो नया
इंग्लिश के अंदर ए को यूज कहाँ करते हैं? नाउ आफ्टर टुडेज सेशन यू विल बी सीइंग दैट यू हैव लर्नड समथिंग ग्रेट इन इंग्लिश. ओह माय गॉड, आई नेवर न्यू दिस वन. आप लोग सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, दैट आई नेवर न्यू दिस वन बिफोर. ये मुझे पता ही नहीं था. Getting it? This is what my guarantee. Today I'm going to show you something great today, and that's what you haven't learned anything before like this. So today is grammar. Let's get started now. So we are going to see today a indefinite article. First of all, a indefinite article. Now, how many of you, before we start our lecture, before we go ahead, before I teach you anything, I would like to ask you one question, and the question is what? How many of you are thinking that they are very good with grammar? Yes. How many of you are thinking that they are very good with grammar? Anyone in my class? Any Michaelal? Any Sher? How many of you think that they are very good at grammar? कोई भी नहीं है? Hello? Hello? Sir, I am good little bit. बाकी लोगों को क्या हुआ, डर लग रहा है? I am not, sir. I can answer the questions. ऐसे ही डर चाहिए सामने वाले के अंदर आप लोगों का. जब आप लोग कहीं पर जाएंगे ना, तो सामने वाला बोलना चाहिए, ओ माय गॉड, अरे नहीं यार, ये बंदा जरा थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को, मैं इससे टक्कर नहीं ले सकता हूँ. यही डर चाहिए. यही डर आपको बनाना है सामने वाले के अंदर. दैट यू हैव टू बिकम सो स्ट्रांग and so powerful and so amazing that the person in front of you should think 100 times before talking to you. Oh my God, अरे नहीं यार, बड़ी पर्सनालिटी है, वो कुछ बोला, उसने कुछ बोला, अपन उल्टे पलटे हो सकते हैं. My one question to you, all of you, please pay attention. सिर्फ मेरा मिस्टर उसामा को नहीं है, बाकी सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है. प्लीज आंसर मी. I am so sorry. I am a student. What is adjective here? यहाँ पर adjective क्या है? Adjective का मतलब होता है quality, जिसको आप लोग बोलते हैं विशेषण. क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी. गुड, बैड, हॉट, कोल्ड, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, ये सब क्वालिटी होता है. व्हाट इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्या है? कौन बोलेगा मुझे? Student, sir. Student. नो. Student is a noun, sir. Noun, correct. Student is a noun. Sania madam, what is an adjective in this sentence? A, sir. A. O, sir. O, A. M. A. Exactly. A, sir. A. Because why? Because sir, A means single, one unit. तो ये तो सिंगल हो गया, तो मतलब डिटर्मिनर हो गया वो. I am a student. So I am a student. A is adjective here. ऐसा क्यों है ये आपके टीचर्स को भी पता नहीं. ये मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऐसा क्यों है. By the way, how many of you are ready to know the answer which I asked you long time ago in the workshop? मैंने आप लोग को एक वर्कशॉप में एक आंसर, एक क्वेश्चन पूछा था. A 5-star hotel. A 5-star hotel. We don't say 5 stars. We say 5-star hotel. We don't say 5 stars hotel. Correct? We say 5-star hotel. We don't say 5 stars hotel. कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे आंसर मिला नहीं अभी तक के? मिला? No. नहीं मिला है. वो आंसर मिलेगा आप लोग को आज. तो एक रूल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर के अंदर. When to use, when not to use, and how to use it, each and everything. Let's get started. So A is an adjective. A is a determiner. Determiner मतलब पता है ना आप लोगों को? quantifier. अभी हम लोगों ने किया था कुछ दिन पहले. Oh yeah. A is a determiner. A is a quantifier. Correct? Yes. Yeah. So A is a determiner. A is a quantifier. A is an adjective as well. A indefinite article. Now when to use A? Point number 1. You usually put A before singular countable noun beginning with consonants. हम लोग A कहाँ use करते हैं? Rule number 1 is saying you usually put A before singular countable noun beginning with
consonant sounds beginning with consonants. For example, a man, a game, a pot, a bed, a chair, a wall, a car, etc. We use a before singular countable noun beginning with consonants. For example, a man, man का m consonant है. A game, game G is consonant. A pot, pot P is consonant. A bed, bed B is consonant. A chair, chair C is consonant. A wall, wall W is consonant. A car C is consonant. We use a before singular countable noun beginning with consonants. Correct? ये अपने टीचर ने अपने को बोला था, राइट? अपने टीचर ने बचपन में हमको सिखाया था कि भाई कॉन्सोनेंट्स अगर आएगा तो वहां पर क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स अगर आएगा तो वहां पर क्या आना चाहिए? ए. करेक्ट? फॉर एग्जांपल, अ मैन, अ कार, अ बेड, अ प्रॉब्लम, अ पिलो, etc. So we use a before singular countable noun beginning with a consonant. A man, man M consonant. A car, car C is consonant. First of all, what do you mean by consonants? What do you mean by consonants? vowel सोडून सगळे बाकी सब अल्फाबेट Correct. अल्फाबेट. Vowel छोड़कर बाकी जितने भी letters हैं वो सब consonant हैं. We use a for singular countable noun beginning with a consonant. Singular के लिए use करते हैं a man एक आदमी, a car एक car, a bed एक bed, a problem एक problem, a pillow एक pillow. Correct? A chair, a speaker, a wall, a room, a class, a bed, a chair, a wall, a cupboard, a light, a switch. We are using a for singular countable noun beginning with a consonant. Correct? Correct? Yes, sir. या ये अपन ने बचपन से अभी तक ही सीखा है, बट यहाँ पे हमारे टीचर रॉन्ग थे. सॉरी टू से दिस. व्हाई? टीचर ने अपने को इतना ही पढ़ाया. टीचर हमको क्या बोले कि कॉन्सोनेंट्स आएगा तो खाली अ लगा देने का, कहानी खत्म. करेक्ट? बट द टीचर वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे कहानी खत्म होनी होता है. रूल नंबर 2 इज सेइंग व्हाट? But in some words, vowel contains consonant sounds. We use their a, not an before them. But in some words, vowel contains consonant sound. We use a before them, not an. अब ये क्या बोल रहा है? Now, this is what my own experience. I went to a class. मैं एक क्लास में गया था. अभी मैं कुछ दिन पहले, मतलब यानी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले मैं क्लास में गया था. अपने इंडिया का सबसे रेप्यूटेड क्लास है वो. पूरे इंडिया में उसके बहुत सारे ब्रांचेस है. आप लोगों ने भी देखा रहेगा, बहुत एडवर्टाइजिंग चलती है उन लोग का. मैं वो क्लास के स्टूडेंट बोलकर गया था. मैं वो क्लास में स्टूडेंट बोलकर गया था. वहां पे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा उनको. मैं बोला वहां पर वो यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगाना चाहिए? मैंने अ लगाऊं कि एन लगाऊं? तो उसने बोला कि एन लगाना चाहिए बिकॉज यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग विद यू. आई सेड ऑल राइट, थँक यू. आत्ताच घेऊन येतो पैसे, आत्ताच घेतो ऍडमिशन तुमच्या इथं. If you come to know, अपने टीचर ने हम लोग को एक चीज सिखाया था. Whenever we have consonant, singular countable noun beginning with a consonant, we put there a. And when do we use an? Vowels. Vowels के लिए अपन an लगाते हैं. Correct? We Yes. use an for vowels. For example, an apple. Next, an egg. Next, an an owl. Next, an umbrella. Next, an ice cream. Correct? We are using an for vowels. Correct? Singular countable noun beginning with vowels. We use their an. An apple, an egg, an owl, an ice cream, an escalator, an umbrella, an elephant, an advocate, an English teacher, an electrician, an office, an island. We use their an for vowels. Correct? भाई कितने लोगों को ये बात मालूम है? Please Yes. tell me yes. Yes. yes Yes, sir. Yes, sir. yes sir Correct? ये हमको बचपन से पता है इतना. That we are using an for vowels and we're using a for countable noun, singular countable noun beginning with consonants. But यहाँ पे अपने टीचर गलत थे आधे. Now, अब rule number 2 is saying in English, there are some words which are starting with a vowel, but they are having consonant sounds. We are going to use their a before them, not an. For example, a university. Next, a utensil.
Next, a unit. Next, a user. Next, a one. Next, a European. Next, a uniform. Next, a union. If you see in these words, the words are starting with O. O is vowel. Vowel के पहले क्या लगना चाहिए? N. But यहाँ पर लग रहा है A. U starting with U. U is vowel. But वहां पर लगना चाहिए था N. लग रहा है A. E starting with vowel. लगना चाहिए था वहां पर क्या? N. But लग रहा है क्या? A. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अपने टीचर ने क्या बोला था भाई कि जब कोई भी आप लोग को वॉवल मिलेगा तो खाली डायरेक्ट एन लगाने का? गलत, गलत. आधा सिखाया था टीचर ने हम लोग को, एंड शी वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज अभी आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा. मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं. अभी गली है, गली रहती है ना छोटी मोटी, भाई लोग की गली. तो दो उसके अंदर भाई है, एक तो ये प्रदीप और दूसरा भाई है उसके अंदर अंकित. ठीक है, दो भाई लोग है उसके अंदर. Right. हाँ, Ankit. ओके, गुड्डू भाई और अंकित भाई. अभी दो उसके अंदर दो पटेल लोग हैं, करेक्ट. अब यहाँ पे क्या हो गया? अभी अंकित जो है वो राज कर रहा है गली पे. कब से राज कर रहा है वो? 2010 से. मतलब अंकित को राज करते करते गली के अंदर कितना टाइम हो गया? 10 years. ओके, अंकित को कितना टाइम हुआ भाई? 10 years हो गया है. नेक्स्ट, और कल आया कौन नया भाई? गुड्डू भाई. गली के अंदर नया भाई आया गुड्डू भाई, जो कि अभी 2020 में आया लॉकडाउन के अंदर, जिसको आके आके अभी से खाली 8 दिन हो गए. ज्यादा किसका चलेगा भाई? अंकित भाई. ऑब्वियसली अंकित भाई. फक्त शेड. और जो मेरे को सुबह जो फोन किया था ना मैंने, सर जो पावरफुल रहेगा उसका चलेगा सर. एग्जैक्टली, जो पावरफुल रहेगा. और जो पावरफुल कौन रहेगा? जो पुराना है. यस नो? तो जो sir. पुराना है उसका चलेगा. ऑब्वियसली सी बात है. सेम केस. अभी आप लोग बचपन में खेल खेलते थे. दुनिया में पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? बड़े थर्ड क्लास गेम था. अपन वो नहीं खेलेंगे. मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा. Sir. पहले स्पोकन इंग्लिश आया कि रिटन इंग्लिश आया? Spoken. जब केबल डाल के गए थे स्पोकन सर. एग्जैक्टली. आ जाएंगे ना वो चेक करेंगे. वो कैसा रहता मालूम है क्या? केबल वगैरह डाल के रखते हैं और उसमें वो स्पोकन इंग्लिश पहले आया है, रिटन इंग्लिश बाद में आया है. तो भाई चलेगी किसकी ज्यादा फिर? स्पोकन की सर. Spoken की. ऑब्वियसली स्पोकन का ज्यादा चलेगा बात, क्योंकि स्पोकन बहुत पहले से है तो लोग उसको ज्यादा पहचानते हैं. इसको पहचानते कि रिटन को? नहीं. गुड्डो को ज्यादा पहचानते कि नहीं? अंकित भाई को पहचानते कि 10 साल से रात कर रहे, 10 साल से हफ्ता ले रहे वो. सो सेम केस. नाउ व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, the rule will be applied on that only. The rule will be applied that only. Whatever we are speaking, rule will apply on that only. Now if you see here, since childhood we've come to know that we use a before singular countable noun beginning with consonants. We use an before singular countable noun beginning with vowels. But here the rule is saying something else. We are going to use a before singular countable noun beginning with consonant sounds. Consonant sounds. For example, a university. यहाँ पर a क्यों यूज हो रहा है? यूनिवर्सिटी का y u तो वॉवेल है, बट वहां पे a क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज university. You. The sound is coming there. You. The sound is coming y. Sound किसका आ रहा है? y का sound आ रहा है. And what is y? Y कौन है? Consonant. Consonants. Correct. Y is consonant, and for consonants we are going to use there A. A. Yes or no? Consonants के लिए क्या लगेगा? A लगेगा. Yes, sir. And the sound is there absolutely consonant. University. उसको हम लोग बोल रहा हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि umbrella. No, I'm saying umbrella. The sound is there. A, E, I, O, U. ये अपने vowels हैं इंग्लिश के अंदर. Yes or no? And the sound is coming there.
umbrella, umbrella vowel का sound आ रहा है, इसके लिए लगा वहां पर an, but यहाँ पर sound क्या आ रहा है u का, university, university, university means what? The sound is coming there u, and that's what y, and for y we are going to use there a, because y is consonant. So here the sound is coming university, university. Same case here as well. Unit, 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 unit. Do we say unit? Do we say unit? No, we say unit, 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 unit. The sound is y, y, y. And what is y? Y is consonant. Y is consonant, and that's why sound will be what? A unit, a unit, a unit. Next, a uniform, 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 uniform. If you see in this word uniform, a uniform, sound is starting with y. And what is y? Y Consonant. is Vowels. consonant, and for Consonant. consonants we are going to use there A. aya, aya ke nahi? Yes. So this is the rule over Yes, here. sir. जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा रूल अप्लाई होगा. आप लोग कुछ और बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ और, वैसा नहीं होता है इंग्लिश में. इंग्लिश इज अ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज. सो यूनिफॉर्म, यहाँ पर आपका टीचर होगा फेल, जिसने आपको बचपन में इंग्लिश पढ़ाया था. सॉरी टू से दिस. सेम केस यूटेंसिल, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल, यूजर, 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 यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन. द साउंड इज कमिंग य, and here you're going to put there a, y का sound आ रहा है वहां पर. यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे? a, not an. Okay, we are going to use there a, not an. Any doubts to anyone? Any No, questions? sir. Same case. अभी मैंने No, कितनी sir. बार मेरा आप लोगों को आपको बोला है, a one of my student, a one of my friend, a one of my student, a one of my friend, a one of my student, a one of my friend. कितने लोगों को मैंने ये बार सेंटेंस में मैं कितनी बार बोलता हूँ? A one of my student cracked an interview, a one of my student got a job, a one of my student is working abroad, a one of my student has cracked IELTS exam, a one of my student called me, a one of my student texted me. कितनी बार बोलता हूँ मैं ये? A one of my relative met me, a one of my neighbor called me, a one of my teacher taught me. So this is what a one of. पर आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा सर आप यहाँ पे a one कैसे बोल सकते हैं जब one का o vowel है. Now the answer is coming. A one मैं इसके लिए बोलता हूँ because the वहाँ पे sound क्या है? A one, 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 one. वहाँ पे W का sound आ रहा है. And what is W? Consonant. 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 और consonant के लिए क्या लगेगा भाई? O. Oh, आया. A. wait. So this is what Yes, exactly. sir. Some of the words are there which are starting with vowel, but they have consonant sound, and we are going to use there a, not an. We are going to use there a, not an. समझ में आया? Yes. समझा? Any doubts Yes, to sir. anyone? Yes. So now आज No, से sir. definition, आज से definition change. अब तक क्या बोलते थे? We are going to use there a for singular countable noun beginning with consonant. नहीं, क्या बोलना है आज के बाद में? Consonant Sounds. sounds. We are going to use Sounds. there a for consonant sounds. Consonant sounds के लिए Sounds. हम लगाएंगे a. Getting it? Getting it? Any Yes. doubts to anyone? No, sir. Very good. So this is it. आज जाके अपने दोस्त लोग को आप पूछ सकते हैं, अरे ते यूनिट ला काय लावायचं रे? अ लावू का एन लावू? दोस्त आपका बोलेगा एनच लावायचं की युनिट स्टार्ट होतो ना. ते बोलले जे तल्लाक तुला आजच्या आजच. आता पुढच्या जन्ममध्ये भेटू नको मला. का? इंग्लिश बेकार है तुझी. मजाक कर रहा हूँ. चलो. So this is सर it. एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या सर आप ये शॉर्ट में थोड़ा? Now see, simple rule is there. Whenever we are going to use there a for singular countable noun beginning with consonants, correct? Rule is what? Whenever we have singular countable noun beginning with consonant sound, for example, university starting with U, we are going to use there a because the sound is starting with y. And what is y? Y is consonant. A one of my friend, a one of my student, a one. Why are we using here? The word is starting with one, with o, but the sound is coming w. One, 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 one. And w is what? It is a consonant. So consonants, for consonants we are going to use a, not an.
A user, 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 user. The sound user starting with Y, we're going to use their A, not N. Simple. Now, guys, Okay, sir. before we go ahead, would like to ask you one more question. Who will answer me this? Let's see. Now, what to use over here? A or N? Answer. Answer. And Answer. And Answer. And आधे लोग इसमें से आंसर देते ही नहीं है. and because sir vowels, the sound is starting with E आएगा vowels. sir. I'm launching a poll and you have to answer me, okay? The people who are saying N, please say yes, and the people who are saying no, they say no, okay? yes, How many of you are seeing there? Sir. Yes, sir, I Answer can see. A. If your answer is A, then please click on yes. If your answer is A, click on yes. Please, जल्दी 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 जल्दी. And बाकी लोग सो रहे हैं क्या भाई? If your answer is A, please say yes. And if your answer is N, please say no. नो If सर, you अपने एन के लिए यस बोला था सर. एंड के लिए yes बोला. N के लिए जितने ठीक है चलेगा. तो जितने लोग बोल रहे हैं N, वो yes कीजिए. Yes, yes. N yes and Answer सब में डाला था. okay. चलो. N ना yes बोला है Yes. जिन लोगों ने. मैं आपके सामने क्लिक हाँ. करके दिखाता हूँ. I'm sharing the results in front of you. अब आपको दिख रहा है? 83 people are there. They are saying the answer is N. Correct? yes, Oh, N. Correct? And only 17% people are there who are saying the answer is A. चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. कितने लोगों ने बोला है N? They are absolutely wrong. अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ध्यान दीजिए प्लीज. अरे ये कौन सा बंदा था जिसने A बोला था? यस. A बोलने वाला बंदा कौन था? बोल ही नहीं रहा है. मैंने बोला था सर. अच्छा, A क्यों आएगा सर वहां पर? N क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि Y से स्टार्ट हो रहा है ना सर, कॉन्सोनेंट से. हाँ, यहीं पे गलती कर रहे हैं देखो अभी आप. यू आर वेरी गुड बॉय. आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट. आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है. आंसर यहाँ पर A ही आएगा, N नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? प्लीज पे अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पे अटेंशन. I waited for you for a year. I waited for you for a year. If you see here, वहां पे मैंने year नहीं बोला. मैंने year नहीं बोला. मैंने बोला year, 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 year. अभी तो पढ़ा है मैंने आप लोग को. year का साउंड आएगा. year, 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 year का साउंड आएगा. year का नहीं बोला मैंने. मैंने आपको बोला कि I waited for you a year. एक कान से मैं आपके लिए रुका हूँ. No, I didn't say year. I say year. ये मिस्टेक है अपने यहाँ पर. हमारे यहाँ पे साउंड निकालने नहीं आता है टीचर्स लोग को भी. सॉरी टू से दिस. 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, 2 कान का कोर्स है. 1 ईयर का कोर्स है, 1 कान का कोर्स है. बोलना चाहिए था a year, 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 यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी. य का साउंड आ रहा है वहां. य का वहां पर अ नहीं था, वहां पे था य य य. और वो य कौन है? कॉन्सोनेंट साउंड है. फॉर कॉन्सोनेंट साउंड्स वी आर गोइंग टू यूज देयर A N. समझा? समझा? Yes sir. यस सर. काय करो आपला? तर मजाक आमचे करा. टीचर्स आम्हाला लोकल इंग्लिश शिकवत गेले. आम्ही शिकत गेलो. चलो अभी सही जगह पे आ गए. अभी अपन उतना तो पढ़ते हैं. So by the way, so this is what uniform starting with U and Y is consonant. Unit starting with Y and Y is consonant. Next, a uniform, a university, a utensil, a union, a unit, a user, a European, a one, etc. One starting with W. Y and W are consonants, and for that we are going to use their A, not N. Is that clear? Is that Yes, clear sir. to all of you? Very good. Yes sir. Now, यस सर. to all of you is what? Pradeep,
please pay attention. Osama, pay attention. Chaitali, pay attention. Tanya. Now, Jyotsna ma'am, please pay attention. Ankit, Shivdas, Karthik, Khatarnak, Guddu. Now, uncountable अपन ने अपने क्लास में पढ़ा था, right? We have seen uncountable in our class. Correct? ध्यान देना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Uncountable we have seen already in our class. Uncountable साठी आपण अ यूज करू शकतो का? Can we use a for uncountable? Yes. अरे Yes. कौन बोल रही है? अरे यू. भाई शपथ. अरे ए का मतलब क्या होता है? वन होता है ना. अब अ का अपने पास में नया मीनिंग आ रहा है. We can use a for uncountables also, but one condition is there when there is a partitive noun. When there is a partitive noun, we can use there a for uncountable. अब हम लोग a यूज कर सकते हैं uncountable के लिए जब वो partitive noun रहेगा. Partitive का मतलब क्या है? What do you mean by partitive? ये जो word है partitive ये आया है part से. part. जब अपन उसको part करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तब अपन उसके लिए यूज कर सकते हैं a का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल, करेक्ट. बट वी कैन यूज a फॉर अनकाउंटेबल्स एज वेल व्हेन देयर इज अ पार्ट. जब उसका अपन पार्ट बनाएंगे तो हम उसके लिए a यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई से अ वाटर? क्या मैं बोल सकता हूँ अ वाटर? Yes. बोल सकता हूँ मैं? Yes, sir. नो, रॉन्ग है वो. अपन ऐसे बोल सकते हैं एक पानी? No. कभी नहीं. ऐसे पाप हम लोग करेंगे? We can't say a water. Water is absolutely uncountable. We can't say a water in English. All right. But हम लोग uncountable के लिए a लगा सकते हैं when there is a part. जब उसको part बनाते हैं. For example, we can see here. We can use a before singular countable noun. Now we can use a before partitive nouns. Partitive noun के लिए भी अपन a लगा सकते हैं English में. For example, a loaf of bread, a slice of bread, a drop of water, a drop of water. Can we say a water? It is absolutely wrong. Wrong A. No. Yes or no? We can't say. But we can say a drop of water. A half liter water, sir. water. A Cup of coffee. bottle of water. A glass of water. If you see, my dear friends, we are using for drop. एक drop water का, एक लीटर पानी का, एक लीटर water का, एक bottle पानी का, one bottle of water, a glass of water, एक glass पानी का. Means what? Ultimately we are using a for the part, not for the noun. Any doubts? समझ में आया आप लोगों को? Can I say a water? No, it will be wrong. Wrong हो जाएगा. बट अगर वो वाटर का मैंने पार्ट बनाया, अभी फॉर एग्जाम्पल समंदर है बहुत बड़ा, करेक्ट, देयर इज अ सी, और वो सी के अंदर मैंने बॉटल डालकर एक बॉटल निकाला पानी की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अ बॉटल ऑफ वाटर. पानी का एक बॉटल. सो मैं अ किसके लिए यूज कर रहा हूँ? अ ड्रॉप, अ लीटर, अ बॉटल, अ ग्लास, एटसेट्रा. आई एम यूजिंग ए फॉर ग्लास, बॉटल, लीटर एंड ड्रॉप, नॉट फॉर वाटर. आई गेटिंग द पॉइंट? जब उसका पार्ट रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल समंदर में से पानी भर के मैंने निकाला, तो समंदर के अंदर से वाटर का इतना पार्ट हुआ कि नहीं है? Yes. यस. Yes, वो sir. पार्ट के अपन अ यूज कर रहे हैं वहां पर. समझ में आया? सेम केस, ब्रेड इज एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल, करेक्ट? ब्रेड Yes. इज एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल. बट इफ आई से अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड का एक लोफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं. और अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, a loaf of bread, a slice of bread. ब्रेड का एक स्लाइस, ब्रेड का एक लोफ, a loaf of bread, a slice of bread. Next, a bar of chocolate. Chocolate is uncountable, correct? Yes. Chocolate is uncountable. But अपन किसके लिए लगा रहे हैं वहां पर? a bar. Chocolate का एक बार. So when there is a partitive noun, we can use a before uncountables as well. So how, my dear friends, as you can see over here, we can use a for uncountable nouns. For example, a loaf of bread, a slice of bread, a piece of ice, a cube of ice, a piece of cloth, a drop of water, a liter of water,
a piece of information, a drop of blood, a liter of blood, a bottle of blood, a piece of news, a grain of rice, a kilo of rice, a bar of chocolate, a lump of sugar, a pinch of sugar, a cake of soap, a pinch of salt, a bowl of fruit, a piece of furniture, next a piece of paper, a kilo of wheat, a piece of fruit, etc. So we can use a before uncountable nouns when there is a part. When there is a part. For example, cloth. Cloth is uncountable, but I can say a piece of cloth. For example, my t-shirt is a piece of cloth. I have a piece of news. This is a bar of chocolate. I have a cake of soap. अपना जो सोप होता है ना साबन, उसका एक ये होता है ना टिकी बार होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? A cake of soap. A ball of fruit. A drop of water. A drop of blood. A cube of ice. Cube. A piece of ice. A cube of ice. Now, my question is there to all of you. All of you. मेरा एक question है. A piece of fruit. A piece of fruit. Very interesting question. Very interesting question. आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है. क्या आप लोग सभी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जाग रहे हैं। जागे से जाग रहे सर। आप लोग पोलिंग के टाइम पे आंसर देते ही नहीं, आधे लोग सोते पड़े रहते हैं। पोलिंग के अंदर थोड़ी किसी ने कौन सा आंसर दिया, बट इतना समझ में आता है कि भाई सब लोग जागे हैं, आंसर देना है पोल के अंदर। ओके, नाउ अभी जिसने आंसर, जिसने अभी अपने पास में था एक अपना दोस्त, कौन है दोस्त? वो है हमारा दोस्त गुड्डू। अब गुड्डू भाई गए पोलैंड। कहाँ गए? पोलैंड। ओ माय गॉड, पोलैंड के अंदर मीटिंग था गुड्डू भाई का, कंपनी का मीटिंग था। गुड्डू भाई बैठे एकदम ऐसे आराम से। तो वहां पर सिनेरियो क्या है देखिए प्लीज, व्हाट्स द सिनेरियो। वहां पे गुड्डू भाई बैठे हैं, एक टेबल लगा है, नाइस टेबल, और वो टेबल के ऊपर, टेबल के आजू बाजू में लोग बैठे हैं। तो वहां पे हमारा गुड्डू भाई भी बैठा है, ये गुड्डू भाई बैठा है इधर, यहाँ पे वो फिर बाकी फॉरेनर लोग बैठे हैं इधर। ऐसा पोलैंड के अंदर इकोनॉमिकल मीटिंग हो रहा है, बहुत जबरदस्त मीटिंग हो रहा है। वहां पे हमारे गुड्डू भाई बैठा है, यहाँ पे सब ऐसे लोग बैठे हैं इधर पूरे आसपास में। और गुड्डू भाई के पीछे एक बैठी है एक कच्ची गली। कौन बैठी है? एक तुम्हारी भाभी बैठी हुई है, और उसने बोली गुड्डू, हेलो गुड्डू। अरे भाई शपथ, बोलो ना। और यहाँ पर जो टेबल है, ये टेबल के ऊपर एप्पल्स रखे हुए। क्या रखे हैं सर? एप्पल। एप्पल एप्पल्स रखे, एप्पल्स रखे पीछे इधर। ये टेबल के ऊपर, पूरा टेबल के ऊपर खाली एप्पल्स 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 रखे इधर, एप्पल्स रखे इधर, खाली एप्पल्स रखे। और यहाँ से वो जो लेडी थी, ये वाली लेडी, ये लेडी ने हमारे गुड्डू भाई को बोली, हाय गुड्डू, बोला ना बोला ना बोला ना। उसने बोली गुड्डू, कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट प्लीज? कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट प्लीज? लिसन टू मी केयरफुली। कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट प्लीज? कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट प्लीज? गुड्डू क्या करेंगे उसको? हेलो सर फ्रूट एप्पल देंगे सर वहां से। ओके ओके। अभी यहाँ पे मुझे दो आंसर सुनाई आए हुए क्लास के अंदर से। मिस्टर जो भी जिसने भी बोला है, ए बोल रहा है कि हम लोग उसको एक पीस कट करके देंगे, पीस विथ कट देंगे। और बी जो कि मिस्टर उसामा बोल रहे हैं कि हम लोग देंगे फुल एप्पल। नहीं सर, फुल एप्पल नहीं सर, वहाँ पे आपने बोले एप्पल्स के पीसेस रखे हुए ना वहाँ पे टेबल पे। वापस से गौर से सुनना रिकॉर्डिंग को। मैंने बोला वहाँ पे सिर्फ पूरे एप्पल्स रखे हुए हैं। ओके, पूरे तो सर एक एप्पल देंगे सर, एक फुल एप्पल देंगे। चलो भाई, अभी दिख रहा है आप लोगों को, ए मीन्स पीस ऑफ एप्पल एंड बी फुल एप्पल। अब मैं वापस से अब यहाँ पर पूल दे रहा हूँ, देखेंगे आप लोग उसका आंसर क्या देते हैं। ओके, नाउ मैं वापस से आप लोग के सामने पूल डालने वाला हूँ यहाँ पर सामने, और आप लोगों को वापस से आंसर देना है। वापस से आपको आंसर। ओके, यस, चलो आंसर प्लीज। ए मीन्स व्हाट? वहाँ पे आंसर दे दो आप लोग जल्दी जल्दी प्लीज। आपके सामने पूल दिख रहा है आप लोगों को? सर बी A means what, sir? A means what, sir? Yes. A means Hello? one piece and B means full apple. ए मींस यस या नो आंसर? Yes जो है हमारा, yes वाला वो हमारा है ए।
पीस, और नो वाला जो है वो हमारा फुल एप्पल है. यस, बी नो वाला जो है वो हमारा फुल एप्पल है. नो फुल एप्पल. ओके, अब मैं पुल एंड कर रहा हूँ आपके सामने रिजल्ट्स, और सभी लोगों ने एक ही चीज बोला है. सभी लोगों ने एक चीज बोला है कि फुल एप्पल देना है. करेक्ट? यस सर. करेक्ट. Yes, sir. ओके, चलो अभी मैं आप लोगों को एक चीज देना चाहता हूँ यहाँ पर. अब कितने लोगों को ऐसे लगता है कि भाई वो एप्पल में से एक पीस कट करके देना चाहिए? No. किसी को लगता है? I. हाय. ओके, सर गुड्डू कैसे देगा सर वहाँ पे कट करके? गुड्डू तो मतलब सेम लेवल का है. अगर डायरेक्ट मतलब फुल एप्पल है तो फुल एप्पल देगा सर उसको. गुड्डू का दिलाया तो वहाँ पे क्या कर सकते भाई? गुड्डू का दिलाया, ए भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग, पहले छुरी लेके आए को देने का, काट के मेरे को नंबर था तुम्हारा यार. No. No, sir. Sir, Apple. piece of apple means there are so many apples, and from that he gave one apple only. One piece. एक्चुअली लिसन टू मी केयरफुली. अब यहाँ पे मैटर क्या है, ध्यान दीजिए प्लीज. मैंने क्या बोला? कैन आई हैव अ पीस ऑफ फ्रूट. उसने लेडी ने क्या बोली है वहां पर? क्या मैं मुझे एक पीस फ्रूट मिल सकता है? मीन्स व्हाट? ही विल गिव देयर वन फुल एप्पल. वन फुल एप्पल. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. और अगर कोई उधर कट करके बैठेगा, उसको देते बैठेगा, बोलिए क्या अ पीस ऑफ एप्पल? नाही, थांबा जरा कट करून देतो जरा तिला. अहो तुमची मीटिंग गेले, कुछ चिल्लाते भाड़त. एक पीस दे रहा हूँ. बोलेगी ऊपर मुंह पे फेंक के मारेगी. बोले तुझ रगा भी मध्य में बोले. तो दिस इज व्हाट एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसने अ पीस ऑफ फ्रूट मांगा था, अ पीस ऑफ एप्पल नहीं मांगा उसने. अ पीस ऑफ फ्रूट मीन्स व्हाट? फुल एप्पल, फुल बनाना, फुल मैंगो, full pear, etc. A piece of fruit means what? Full apple, full banana, full pear. Getting it? So a Yes. piece of fruit refers to an apple, a pear, a banana, etc. Any doubts? No, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. So let's go. So this is what we can use A for singular countable noun, and now we can use A for uncountable nouns when there are a part. For example, a slice of bread, a piece of bread, a piece of cloth, a piece of information, a piece of news, a bar of chocolate, a cake of soap, a bowl of fruit, a piece of paper, a piece of fruit, a drop of blood, a drop of water, a piece of ice, a cube of ice, a grain of rice, a lump of sugar, a pinch of salt, a piece of furniture, a clue of wheat, etc. Okay? Next. Now, a very important thing is coming. 1,000 years. What do you mean by this? 1,000 years. 1,000 years. What do you mean by this? 1,000 years. 1000 साल. Simple. 1,000 साल. Next. A million people. What do you mean by this? 10 लाख लोग. 1 million people. 1 million people. 1 लाख नहीं होता है, 10 लाख होता है वो. लाख ना. 10 लाख लोग सर. 10 लाख बोला सर मैंने. Correct. So, a million means what? 1 million people. 1,000 years means what? 1,000 years. Correct? Now, so we have seen today, A means what? 1. Now here we have seen we can use A for 1,000 years. We have seen A, we can use A for uncountables. Now, meaning number 4, we can use A for little and we can use A for much. For example, a lot of candidates, बहुत सारे candidates, a lot of candidates. We can use A for a few students, थोड़े students. We can use A for a little fried rice, थोड़े rice. Correct? Try a little, थोड़ा try कीजिए, थोड़ा try कीजिए. A few students, थोड़े students. A little fried rice, थोड़ा fried rice. Correct? So we use A for थोड़े के लिए भी use कर सकते हैं हम लोग. Next, a very important thing is coming. Please pay attention, guys. A 5-star hotel. My question is there to you. Please pay attention. My question is there to you. We say 1 star, 2. Singular plural. 1 star, 2. Stars. Stars. 2 stars. Star, 3 star, 4 star. Stars, 4 stars, 5 stars. Why don't we say 5 stars hotel? Do we say 5 stars hotel? No. 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 Why? Why? Because sir, partitive noun. 5 is a partitive noun. Oh really? सच में? Partitive noun है वो. ये कब से हो गया partitive noun?
Sir, quality. A 5-star is a quality adjective. किस तरह उसमें Oh, really? A 7-year-old boy. A 7-year-old boy. Next, a shoe rack. Next, a toothpaste. My question is there to you. A nail clipper. A 3-mile race. अपन ने क्या बोलना चाहिए था? 1 mile, 2 miles, 3 miles. तो यहाँ पे miles क्यों नहीं आ रहा है? Why S is not there? Why there is not S? We must say mile, 3 miles race. Correct? Wrong हो जाएगा. नेल क्लीपर बोलना चाहिए कि नेल्स क्लीपर बोलना चाहिए? एक साथ काटते हैं ना अपन, कितने सारे नेल काटते हैं? 1 2 3 4 5. So we must say there nails clipper. Yes or no? यस Yes or no? तो नेल क्लीपर बोलते हैं हम लोग, नेल्स क्लीपर नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दांत घसते हैं आप लोग? यस घसते हैं ना? नहीं घसते, बाकी लोग नहीं घसते. Yes, sir. Yes, sir. खाते. आप लोग दांत घसते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं इसको? 1 tooth. और पूरे क्या रहेगा? Teeth. करेक्ट. 1 tooth एंड पूरे क्या रहेगा? टीथ. तो अपने को क्या बोलना चाहिए? टीथ पेस्ट, टीथ पेस्ट, टीथ पेस्ट. पर अपन क्या बोलते हैं उसको? टूथपेस्ट. ऐसा क्यों बोलते हैं? सेम केस, आप लोग चप्पल जूते रखते हैं ना, एक जूता रखते क्या उसके अंदर? नहीं, बहुत सारे जूते रखते. तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? शूज रैक. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 7 years old boy. बट ऐसा गलत है. ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? Because क्योंकि- over there we are using A and A refers to 1. वेरी गुड गर्ल. A refers to 1, a 5-star hotel. बट हियर यहाँ पे इतना बड़ा गिनती दिया ना इन लोगों ने. अ यहाँ पे किसके लिए लगा है? वी आर यूजिंग हियर A for Quality. hotel. 5 is a quality. 5-star adjective. So what Sir. about this, my dear? What about this two space? What is the quality over here? Sir, it is uncountable, sir. Toothpaste. What uncountable? एक ही इंसान के दांत है ना वो. छोड़ दो. Okay, now what about this shoes rack? एक ही Nothing shoes is rack है. uncountable, nothing is quality. एक ही रैक है वहाँ, इसलिए तो वहाँ पे अ लगा ना रैक के लिए. तो वही ना, इसलिए लगेगा इसलिए. तो यहाँ पे शूज तो उसके अंदर 2-3 रखते हैं ना अपन, तो शूज रैक क्यों नहीं बोल सकते? शू रैक क्यों बोलेंगे? रैक तो एक ही है ना. तो रैक के लिए अ लगा ना, पर यहाँ पे शूज तो बहुत सारे, तो शूज बोलना चाहिए ना. पर अगर ऐसा बोलते हैं, अगर अपन शूज रैक, तो गलत हो जाएगा. उसको अपन नहीं बोलना चाहिए शू रैक. एक ही रैक है उसमें. एस मैंने रेड में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि वो गलत है. एनी आंसर? चला, आता आज माझा भाऊ बोलत नाही माती माझ्या, मला आवडत नाहीये. कोण माझा भाऊ माहिती आहे ना? किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कार्तिक. एक नंबर. असं ओळखायला पाहिजे. कडक. कार्तिक हा माझा भाऊ है. आज कार्तिक बोल नहीं रहा बीच में, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्तिक के ऊपर. कार्तिक हॅलो. हा सर. सर मी शांत ऐकतोय. शांत ऐकतोय? नाही नाही नाही, शांत ऐकायचं नाही. आपल्या क्लासमध्ये शांत बिंत नाही बसत आपण. आपण तिथे समोर शांत बसतो का? नाही. क्लासमध्ये कसं काय शांत? चलो. सो बाय द वे, आंसर मैं देने जा रहा हूं. ये आंसर आपके टीचर्स को भी पता नहीं है. आप लोग को मेरा क्वेश्चन तो समझा ना पहले बाबा? Yes, मैं क्या sir. पूछ रहा हूँ? Yes, मैं एस क्यों आ रहा है सर उसमें? 5 stars. एस नहीं आना चाहिए उधर. एस नहीं आता है उधर. अपन उसको बोलते हैं 5-star होटल. 5 stars क्यों नहीं बोल सकते हैं? अपन उसको बोलते हैं 7-year-old boy. 7 years old boy क्यों नहीं बोल सकते? समझा? पीछे का सेक्शन कर दीजिए प्लीज. सर योर वॉइस इज वेरी लो. पे अटेंशन ऑल ऑफ यू प्लीज. अपने आप को म्यूट कर दीजिए. अभी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ माझ्या भावाचा, कार्तिक. चला. नाउ अभी कार्तिक मेरा भाई है, बहुत सुपर लड़का है कार्तिक अपने क्लास का. अभी कार्तिक आज पूरे दिन चुप बैठा था, इसके ऊपर उसके ऊपर एग्जांपल है. अंकित? हा सर. हाँ हाँ, नाही आता एग्जांपल नाही होणार आपल्यावर, आपण जागवर. चलो. अभी कार्तिक जो है वो शरीफ बच्चा था. अभी कार्तिक, उसकी 2 वाइफ हैं. दोनों वाइफ एक साथ में रह सकती है क्या? नम्रता और सुषमा. no, sir. या तो कार्तिक बाहर जाएगा घर के, नहीं तो फिर वो दोनों बाहर जाएंगे घर के. है क्या नहीं? यस Yes, सर. sir. सुषमा Yes, बोलेगी sir. मैं जा रही हूँ,
तुला सोडून मरत तर तू इथं तिथेच मर आता, तुम्ही चालले इकडनं. नाही तर नम्रता बोलली काय, तू इथेच मर, मी चालले बाहेर. चला अंकित तुमच्या सोबत मी. अंकित का लाइफ बन गई. अंकित का खुश हो गया रे, ती आनी मारे से. अब कार्तिक का मैटर यहाँ पर वही शॉर्ट है. यहाँ पर एक साथ में दो नाउन नहीं आते. नाउन रहता क्या है पहली बात तो वो देखो आप लोग. नाउन का मतलब क्या होता है. नाउनला मराठीमध्ये काय म्हणतात. नाव नाव नाम. नाव नेम सर, नाव नेम. नेम. नाव. नाउन का मतलब होता है नेम. नाव कोणाचा. नेम ऑफ अ पर्सन, सन. प्लेस, एनिमल, थिंक things, and idea. आइडिया. Okay. Name of a person, place, animal, things and idea. याला म्हणतात आपण नाव, नाउन. फॉर एग्जाम्पल अंकल नाउन है, पर्सन के अंदर आएगा. नेक्स्ट बॉय नाउन है, पर्सन के अंदर आएगा. नेक्स्ट टीचर नाउन है, पर्सन के अंदर आएगा. डॉक्टर नाउन है, पर्सन के अंदर आएगा. करेक्ट, एटसेट्रा. ध्यान दीजिए प्लीज. नेक्स्ट प्लेस में फॉर एग्जाम्पल मार्केट नाउन है, प्लेस के अंदर आएगा. स्टेशन नाउन है, प्लेस के अंदर आएगा. गार्डन नाउन है, प्लेस के अंदर आएगा. करेक्ट. स्कूल ऑफिस. नाउन है, प्लेस के अंदर आएगा. ऑफिस नाउन है, प्लेस के अंदर आएगा, एटसेट्रा. नेक्स्ट डॉग नाउन है, एनिमल में आएगा. कैट्स नाउन है, एनिमल में आएगा. नेक्स्ट स्नेक एनिमल में आएगा, नाउन है. नेक्स्ट कॉक नाउन है, एनिमल में आएगा, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन थिंग्स के अंदर आएगा. फॉर एग्जाम्पल चेयर वस्तु है ना, चीज है ना, थिंग्स के अंदर आएगा. नेक्स्ट पिलो वस्तु है, चीज है, नाउन के अंदर आएगा, थिंग्स के अंदर. बेड. फॉर एग्जाम्पल बेड नाउन है. नेक्स्ट स्पीकर नाउन है. नेक्स्ट पेन नाउन है. सब क्या है, नाउन है ये. यस नो, थिंग्स के अंदर आएगा. आइडिया में आएगा फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, नाउन है. दिखती है क्या ईमानदारी. नेक्स्ट लव, दिखती. आइडिया मतलब फक्त दिस फील करू शकतो आपण, दिसत नाही. हेट नाउन है, दिसत नाही पण, है का नाही, एटसेट्रा. ये सब अपना नाउन है. सेम केस. अभी दो नाउन एक साथ में रह सकते हैं क्या. नम्रता सुषमा रह सकते क्या घर में एक साथ में. नो सर. कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं. या तो कार्तिक बाहर जाएगा उनके साथ में, या तो फिर वो दोनों बाहर जाने वाले. सेम केस यहाँ पे भी वही मैटर है. ध्यान दीजिए प्लीज. अब 5-star होटल, इफ यू सी होटल, व्हाट इज होटल. Hotel is a noun, sir. Noun. Correct. Hotel is a noun. Correct. Why? Name of a person? No. Place? Yes. Yes. Hotel Yes, place में आता है sir. क्या नहीं? Yes, noun है. Next one, star. Star? Name of a Star. person? No. Place? No. Animal? No. No. आइडिया Thing? आइडिया Idea. Idea के अंदर आएगा. Idea. Correct. Noun है ये भी. Next one, 5. 5 क्या है. Name of a person? अंकलचं नाव आहे का 5. इथं या जरा. 7 ला पण बोलो. बोलेंगे. No. No. Name of a person? Place? No. नो Animal? No. sir. Thing? मे बी No, sir. Idea. Idea के अंदर आएगा अपना 5. Yes or no? Idea है ना एक टाइप की. 5 नंबर 5 अपन खाली दिमाग में देख सकते हैं. Yes or no? सर. Yeah. हाँ. अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब यहाँ पे होटल भी नाउन है, स्टार भी नाउन है, 5 भी नाउन है. एक साथ में तीनों नाउन आ रहे हैं. अब कार्तिक के यहाँ पे 3-3 वाइफ है. ओ माय गॉड. तीनों एक साथ में रह सकती है क्या. Oh sir. No, sir. रहेगा. तो क्या करना पड़ेगा वहां पर. तीनों में से वहां पे अभी आपको सेपरेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा उधर. सेपरेट. तो यहाँ पे एक रूल आता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन. एडजेक्टिव प्लस नाउन. जब कभी भी नाउन बहुत सारे आ जाते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, एडजेक्टिव को लेकर आना पड़ेगा. जब गर्दी ज्यादा हो गई तो क्या आती है, पुलिस आती है डंडा लेके, देती सबको दे दूं दे दूं दे दूं. वैसे क्या होएगा, जब कभी भी नाउन एक साथ में आएगा तो वहां पे आएगा एडजेक्टिव. एक साथ में तो सारे नाउन नहीं आ सकते, वहां पे आता है एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ में. फॉर एग्जाम्पल हैंडसम बॉय. अपन बोलू शकतो का बॉय हँडसम. No, sir. हैंडसम एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, और बॉय क्या है, नाउन है, पर्सन है. यस नो. Yes, sir. Yes, sir.
एडजेक्टिव पहले आएगा फिर नाउन आएगा. हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय. नेक्स्ट वन, हॉट कॉफी, गरम कॉफी. आपण असं बोलू शकतो का? कॉफी हॉट. हो सर. हॉट कॉफी. सो हॉट काय आहे? ॲडजेक्टिव्ह. आणि कॉफी काय आहे? नाउन. नेम ऑफ अ पर्सन? नो. प्लेस? नो. एनिमल? नो. थिंग? यस. कॉफी चीज है ना, पीने की चीज है ना. यस. या सर. नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल कार. कार इज व्हाट? नाउन. नेम ऑफ अ पर्सन? नो. प्लेस? नो. एनिमल? नो. थिंग? यस. यस. एंड ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव. विशेषण है कि नहीं? या सर. हाँ. अभी जब कोई भी आप लोग देखेंगे एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ में आता है. अब इतने सारे नाउन आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनके साथ में क्या आएगा? रूल आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन का. अब अपने को एडजेक्टिव को पहचानना है, तो अपन क्या करेंगे? एडजेक्टिवला आपल्याला ओळखायचं आहे, तर आपण काय करणार? थोड़ा सा हाई लेवल का है मुझे पता है, पर आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग वापस देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया था. ओके. अभी अपने को एडजेक्टिव को पहचानना है, तो अपन क्या करेंगे? यस, वहां पे एक फॉर्मूला है. एडजेक्टिव को पहचानने के लिए फॉर्मूला है, आस्क WH क्वेश्चन टू द नाउन. एडजेक्टिव किसके साथ में काम करता है? नाउन. नाउन के साथ में. नाउन के साथ में. एडजेक्टिव किसके साथ में आता है? नाउन. नाउन के साथ में. अपन आप हमेशा ऐसे बोलेंगे ना, हैंडसम बॉय, हॉट कॉफी, ब्यूटीफुल कार, एटसेट्रा, है क्या नहीं? या. सेम केस, एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ में. अभी जैसे कि दो चोर है कि नहीं? कौन है वो? शिवदास और गुड्डू दोस्त थे, और उसके अंदर से गुड्डू ने चोरी करके भाग गया. आप किसको पकड़ेंगे? शिवदास. ऑब्वियसली शिवदास को पकड़ेंगे. क्यों भाई? क्योंकि वो उसका दोस्त था, है कि नहीं? कि दोस्त. वो उसका दोस्त है. Same case. अभी प्रदीप जो है घर से भाग गया है कि नहीं? चोरी हाँ. करके भाग गया प्रदीप. तो प्रदीप की किसको पकड़ेंगे भाई? फॅमिली. घर वालों को पकड़ेंगे, उसकी गर्लफ्रेंड को Family. पकड़ेंगे, तो वड़ा पाव चोरून, है का नहीं? अभी प्रदीप गायब हो गया, तो अभी अपन किसको पकड़ेंगे भाई? प्रदीप के घर वालों को. तो वैसे अभी एडजेक्टिव यहाँ से गायब है, किसको पकड़ेंगे फिर अपन? नाउन को. Ask WH question to the Noun noun को. and get the answer in the form of adjective. अभी अपन ने जाके शिवदास को पूछा, तो शिवदास ने बराबर आंसर किसका दिया? गुड्डू कहाँ है कि नहीं? जाके मैंने प्रदीप के घर वालों को पूछा, प्रदीप कहाँ है? तो वो लोग ने बराबर बताया, प्रदीप यहाँ पे छुपा हुआ है. तो प्रदीप मेरे हाथ में आ गया. So if I ask WH question to the noun, I will get the answer in the form of adjective, और मुझे आंसर मिल जाएगा एडजेक्टिव के अंदर. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हैंडसम बॉय, यहाँ पे नाउन कौन है? बॉय. 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 है कि नहीं? बॉय नाउन है यहाँ पर. वो बॉय को आप लोग क्वेश्चन पूछना है, हाउ इज द बॉय? द बॉय इज हैंडसम. करेक्ट. द बॉय इज हैंडसम. हैंडसम. जो एडजेक्टिव है वो आपका आंसर में आ जाएगा. दिख रहा है? फॉर एग्जाम्पल हॉट कॉफी. अब मुझे पता नहीं इसके अंदर से एडजेक्टिव कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा? नाउन को क्वेश्चन पूछूंगा. नाउन कौन है इसमें? कॉफी. कॉफी. कॉफी को क्वेश्चन पूछो, हाउ इज द कॉफी? कॉफी कैसी है? द कॉफी इज हॉट. हॉट. hot. Okay, hot वहाँ पर आंसर एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल कार. पे अटेंशन. Sir, your voice is. It's beautiful. Please pay attention. कार, ब्यूटीफुल कार. हाउ इज द कार? कार नाउन है, नाउन को क्वेश्चन पूछो, हाउ इज द कार? द कार इज Beautiful. ब्यूटीफुल. हाउ इज द कार? द कार इज ब्यूटीफुल. एडजेक्टिव में आपका आंसर आ जाएगा. सेम केस. अभी यहाँ पर ये 5 भी नाउन है, स्टार भी नाउन है, होटल भी नाउन है. किसको पूछना चाहिए मैंने क्वेश्चन? How is the hotel? How is the hotel? होटल. How is the hotel? पूछना चाहिए होटल को. हाँ? स्टार को नहीं पूछ सकता मैं क्वेश्चन, वो भी तो नाउन है. 5 भी नाउन है, उसको नहीं पूछ सकता क्वेश्चन. होटल को क्यों पूछना है? क्योंकि वो लास्ट में है सर. तो क्या हुआ? गुड्डू मुझे आपका आवाज नहीं आता है. हाँ, ओके सर. थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज. Hotel strong noun है सर. क्या बोले सर? Hotels Strong noun. strong noun है सर एकदम. मतलब इस होटल के बारे में बात हो रही है ना सर यहाँ पे.
पता है होटल के बारे में बात हो रही है। 5-star होटल सर। Yes. 5 काउंट हो सकता है सर। स्टार जो है मतलब 5 स्टार नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। हेलो, Yes, sir. कौन से वाले नाउन को पूछना चाहिए मैंने क्वेश्चन? I think hotel. क्यों बट होटल क्यों? हाउ इज द होटल? I don't know. बिकॉज क्वालिटी सर मेंशन हो रही है ना, 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 होटल के स्टार बारे है। में बात करिए sir. अच्छा ठीक है चलेगा। उसामा आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे शू भी नाउन है, रैक भी नाउन है। किसको पूछूं मैं क्वेश्चन? Rack. बैक। क्यों शूज Rack, को नहीं rack. पूछ सकता मैं? क्योंकि रैक के बारे में बात चली सर ना. शूज के बारे में बात नहीं हो रही। आज मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग आधे आउट हो गए। तो ये और आपके क्वेश्चन ही ऐसे है. यहाँ पे एक ही नाउन है सर। और शू दोनों भी रैक नाउन है। मतलब मेरे भाई दोनों भी नाउन है, बंद कर उसको। हाउ इज द रैक पूछेंगे तो सर एक ही नाउन बचता है ना, शूज। चलो यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। चलो चलो चलो, अभी दिमाग अपना। आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या हो गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं फटाफट इसको क्लोज करता हूँ। नाउ होटल इज ऑल्सो नाउन, स्टार इज ऑल्सो नाउन, 5 इज ऑल्सो नाउन। तीनों भी नाउन है, पर लास्ट वाले नाउन को क्वेश्चन करेंगे। क्यों? आंसर आपके स्क्रीन पर था, आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं। एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन हमेशा बाद में आता है। दिख रहा है क्या आप लोग को? हैंडसम बॉय, कॉफी बाद में आ रहा है, कार बाद में आ रहा है। कैन वी से लाइक दिस, बॉय हैंडसम? No, sir. कैन वी से कॉफी हॉट? No. No, sir. कैन वी से कार ब्यूटीफुल? No, sir. नाउन हमेशा लास्ट बाद में आता है। Bad. नाउन हमेशा बाद में आता है। तो जो लास्ट में आ रहा है, नाउन का जगह कौन सा है? लास्ट में। नाउन का जगह लास्ट में। तो जो लास्ट में नाउन आ रहा है उसको हम लोग को क्वेश्चन पूछना है। समझा? समझा? Yes sir. सर। Yes, समझा? sir. सिंपल। Yes, sir. वो ऐसा नहीं था, वो वैसा था, वो ऐसा था, मेरे को ऐसा लग रहा। फिर एडजेक्टिव क्या आएगा सर फिर यहाँ पे? ध्यान दीजिए। अरे रुको रुको रुको, ब्रेक मारो बता रहा हूँ मैं। नाउ अब अपने को लास्ट वाले नाउन को क्वेश्चन पूछना है। पूछो सो क्वेश्चन। हाउ इज द होटल? होटल कैसी है? रमै के 5 होटल, स्टार। गने के होटल, इम्मू के होटल, बबलू के होटल, रफी के होटल, शफीक के होटल, या 5 स्टार होटल? नहीं, 5 हाउ इज द star होटल? hotel. 5 स्टार होटल। 5-star Oh hotel. my God! 5-star hotel. The hotel is काल अमीना है, कहीं का होटल में देखिए तो 5 स्टार होटल। Oh my God! एडजेक्टिव हो जाएगा। 5 स्टार क्या हो जाएगा फिर? वहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव अपने आंसर में आएगा। यस सर नो? यस सर। Yes. Yes, sir. 5 स्टार बन जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है क्या? No. No, sir. हेलो, आंसर देखो यहाँ पर। एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है क्या? मैं बोलूंगा हैंडसम नो सर। No, गरम sir. होती हॉट कॉफी। हा आपण बोलू शकतो। No. ब्यूटीफुल स्कार। नो सर। हेलो ज्योत्सना मैम, प्रदीप, सानिया, शिवदास, अंकित, कार्तिक, समझ में आया क्या? यस सर। Yes. मतलब अपन एडजेक्टिव बना सकते हैं क्या? एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं, इसके लिए उसको बोलते हैं 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, क्योंकि वो एडजेक्टिव हो गया। सेम केस मैं यहाँ पर एक और जंप कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले रूल के ऊपर। नाउ रैक, व्हाट इज रैक? रैक मींस व्हाट? नेम ऑफ अ पर्सन? नो। प्लेस? नो। एनिमल? नो। थिंग? यस। यस। रैक Yes. नाउन है। नेक्स्ट शू, शू इज व्हाट? नेम ऑफ अ पर्सन? नो। No. प्लेस? नो। एनिमल? नो। थिंग? यस। Yeah. टू बी नाउन है। अब दो नाउन एक साथ में आ रहे, कौन से वाले नाउन को क्वेश्चन करना चाहिए मैंने? Rack. Last वाले. एग्जैक्टली, लास्ट नाउन को। लास्ट नाउन कौन है? Yes. रैक है। पूछो भी, फॉर व्हाट इज द रैक? डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फॉर व्हाट इज द रैक? Shoes द रैक rack. इज फॉर? शू। Shoes rack. करेक्ट। तो शूज क्या बनेगा वहां पर? नाउन से हट के वो बन जाएगा एडजेक्टिव। Adjective. दो नाउन एक साथ में आ सकते हैं क्या? नहीं, एक को एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। तो वहां पे शू बन गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव प्लूरल होता है क्या? No. No. आया आंसर? Yes. Yeah, Yes, sir. sir. आया आंसर? Yes, sir. सर। This is the simple answer. Same case. Tooth is what? Name of a person, place, animal, thing? Yes, thing है। Yes. Noun. Next, paste क्या है? Name of a person, No. place, No. animal, No. thing? Yes. Yes. Paste noun है। दो नाउन साथ में आ रहे। लास्ट वाले नाउन को क्वेश्चन पूछो। How is the paste? Paste Tooth. कैसा है? Yes. टूथ का पेस्ट है। For what is the paste? Paste किसके लिए?
टूथ के लिए, टूथ विल बिकम एडजेक्टिव. अब टूथ नाउन से क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव प्लूरल होता है क्या? No. प्लूरल होता है? नहीं. सेम केस. नेल क्लिपर. नेल क्लिपर. व्हाट इज नेल? नेम ऑफ अ पर्सन, No. प्लेस, No. एनिमल, थिंग. Yes. क्लिपर, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. यस. Yes. क्लिपर भी नाउन है, नेल भी नाउन है. दो नाउन एक साथ में आ रहे. किसको पूछेंगे क्वेश्चन? Clipper को. क्लीपर को क्वेश्चन. Use the clipper. और व्हाट इज द क्लीपर? द क्लीपर इज फॉर Nails. nail, and nail will become adjective. और adjective plural होता है क्या? No. adjective plural नहीं होता है. अपन हैंडसम्स बोलेंगे क्या? नहीं. हॉट्स बोलेंगे क्या? अरे कितनी गर्म होती कॉफी, हॉट्स कॉफी होती है. बोलना का? No. So it will never ever be plural. Any doubts to anyone? No, Any sir. doubts? No, sir. Same case यहाँ पर भी आएगा. Seven. Seven is what? Noun. Next, year. Year is what? Noun. Boy is what? Noun. Noun. Last noun को question को पूछना है. How is the boy? The boy is 7 years old. old boy. Boy बच्चा कैसा था? 7 साल का बच्चा था. The boy was 7-year-old. 7-year will become adjective, and adjective will never ever become plural. 3-mile race. Race is what? Noun. Noun. Race क्या है? Noun है ना? Next, mile. Mile is what? Noun. 3 is what? Noun. 3 noun एक साथ में आ रहे हैं. Noun. कार्तिक चलेगा क्या? नहीं चलेगा. No. अब वहां पे लास्ट वाले नाउन को पूछना आपको क्वेश्चन. हाउ इज द रेस? रेस कैसी है? द रेस इज 3 men. 3-mile race. 3-mile race. So 3-mile will become adjective. 3-mile will become Adjective. adjective. And adjective never ever becomes plural. Adjective कभी भी plural होता नहीं. Any doubts? Nahi. No, sir. Any questions? No, sir. Last one is there. Have a look here. We can use A for jobs as well. Job के लिए भी अपन A use कर सकते हैं. A teacher, a lawyer, a doctor, a painter, a sculptor, a teacher, a professor, etc. Getting it? A अपन jobs के लिए भी लगा सकते हैं. Any doubts? No, sir. Sir, Any questions? Yeah. तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रहा है सर मुझे आपका. तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Yes, weighing scale. Weighing scale. Weighing scale. Okay. Scale. Okay, scale बोलेंगे. Any doubts to anyone? So we have completely finished here a indefinite article. अपना यहाँ पर a indefinite article finish हो गया है. आज हम लोगों ने देखा a कहाँ पे यूज करते हैं. तो a का सबसे मेन चीज समरी में आपको बता रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन हियर. यहाँ पे ध्यान देना है. a कहाँ पे यूज करते हैं, a का मतलब क्या होता है और कहाँ पे यूज करते हैं. a means one. ध्यान देना है. a means what? One. And a we are using for single countable noun beginning with consonants sound. Consonant sounds. ये मेन चीज है. समझा? Any doubts? ये मेन चीज है. अपन a के लिए यूज करते हैं. Any doubts to anyone? No, sir. No, sir. Any questions? No, sir. No, sir. Sir. Okay. We'll see you tomorrow. Just go and see the recordings once again so you can understand it in a better way. All right. And tomorrow, see, listen to me. Pay attention. One more thing would like to tell you. आज आप लोग को एक और बात बोलना है. Today is what? 20th. Correct? आज 20 तारीख है. कल मेरा बर्थडे है. हर महीने आता है. Okay? Yes, sir. कल मेरा बर्थडे और हर महीने आता है 20 तारीख को. क्यों भाई? क्योंकि आज अपना क्लास का फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया है. सेकेंड थिंग, टुमारो 21 तारीख को अपना क्लास स्टार्ट हुआ था, राइट? 21st को. आज फर्स्ट मंथ अपने क्लास का कंप्लीट हो चुका है. टुमारो इज 21st. ओके? एंड आई वांट द फी, सो प्लीज क्लियर द फी ऑफ योर्स. ऑल ऑफ यू प्लीज क्लियर द फी. ओके? आपको ये 30th से पहले, 30 तारीख से पहले आप लोग को फी पूरा क्लियर करना है आपका, वरना आप लोग को क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. सॉरी टू से दिस. ओके? क्लास के अंदर भी एंट्री नहीं मिलेगी और एप्लीकेशन में से भी आप लोग इनएक्टिव हो सकते हैं. ऑलराइट? रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा फिर. सो प्लीज, आज अपना फुल मंथ फिनिश हो चुका है. प्लीज पे द फी एंड क्लियर द फी एज सुन एज पॉसिबल. 30 तारीख से पहले आप लोगों को आपका फी क्लियर करना है. Okay, sir. Okay, ऑलराइट? sir.
See you. Cheerio. Yes, sir. Cheerio, sir. Goodbye.